میں ڈیوٹی سے واپس آ رہی تھی کہ اپنے پیچھے قدموں کی آواز سنائی دی۔ میں نے توجہ نہ دی، لیکن جب قدموں کی چاپ مسلسل آتی رہی تو سمجھ گئی کہ کوئی ہے جو میرے پیچھے کچھ فاصلے سے چلا آ رہا ہے۔ اگلے دن بھی جب بس سے اتری تو وہ میرے پیچھے اتر پڑا، اور آج بھی اس کے قدموں کی چاپ مسلسل میرا پیچھا کرتی رہی۔ صبح شام جب یہی ہونے لگا تو میں گھبرا گئی۔ میرے حالات ایسے تھے کہ ملازمت ناگزیر ہو گئی تھی، ورنہ میں گھر کی ٹھنڈی چھاؤں سے کبھی باہر نہ نکلتی۔ بس کی کھڑکی سے سر ٹکا کر سوچتی کہ آخر کیوں کر پیچھا کرنے والے یا ان کی گھورنے والی نگاہوں سے بچ سکتی ہوں۔ اپنی منزل آ گئی، دل خوش ہوا کہ اب اس لوفر سے جان چھوٹی۔ سڑک پر آئی، اسے پیچھے آتے دیکھا تو میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ تب بھی تاؤ میں آ کر میں نے دو چار سنا دی۔ اسی وقت کچھ لوگ پاس سے گزر رہے تھے۔ وہ سمجھے کہ شاید اس شخص نے مجھے چھیڑا ہے، وہ اس کی مرمت کی خاطر آگے بڑھے۔ تبھی وہ نوجوان گھبرا گیا۔ اس نے کہا، باخدا میں نے کچھ نہیں کیا، میں تو اپنے راستے جا رہا تھا، جانے ان کو کیا غلط فہمی ہوئی ہے۔ ایک نے مجھ سے پوچھا، کیا اس نے آپ کو چھیڑا ہے؟ نہیں، چھیڑا تو نہیں، لیکن یہ میرا پیچھا تو کرتا ہے۔ میں نے بتایا، میں ان کا پیچھا نہیں کر رہا، یہ میرے گھر کا راستہ ہے، میں اپنے گھر جا رہا ہوں۔ کیا اپنے گھر جانا بھی کوئی جرم ہے؟ میں نے تو پھر مڑ کر نہیں دیکھا کہ لوگوں نے اس کی کیا درگت بنائی۔ میں تیز تیز قدم اٹھاتی اپنی راہ ہوئی تھی، البتہ شور میرے کانوں میں تعاقب کرتا رہا۔ گھر پہنچی تو پریشان اور تھکی ہوئی لگ رہی تھی۔ شام سے رات ہو گئی، میں افسردگی کے گرداب سے نہ نکل سکی۔ اگلے دن ڈیوٹی پر جانے کے لیے بس اسٹاپ پر آئی تو وہ پھر ملا، لیکن آج اس کے چہرے کی چمک بالکل ماند تھی۔ اس نے ایک نظر مجھے دیکھا اور پھر نظریں جھکا لیں۔ میں سمجھ گئی کہ وہ واقعی ہمارے قرب و جوار میں رہتا ہے، اور میں نے غلط فہمی میں یہ سمجھ لیا کہ وہ میرے تعاقب میں آتا ہے۔ اصل میں یہی بات صحیح تھی کہ وہ اپنے گھر جا کر رہا ہوتا تھا۔ اس وقت اس کے چہرے پر جو تاثرات تھے، میں انہیں کوئی نام نہیں دے سکتی۔ میں خود کو مجرم سمجھ رہی تھی۔ اس کی تصویر میری آنکھوں میں رہ گئی۔ اس کی آنکھوں میں شکوہ تھا، بے بسی تھی، لیکن نفرت نہیں تھی۔ فیکٹری آ کر میں ڈیوٹی صحیح طرح سے انجام نہ دے سکی، اور ہزار کوشش کے باوجود اسے ذہن سے نہ نکال سکی، گرچہ اس کے لیے میں کوئی نرم گوشہ اپنے دل میں نہ رکھتی تھی، لیکن اس کے بارے میں سوچتی ضرور تھی۔ کاش میں عجلت میں اس پر نہ برستی تو آج میرے دل میں اتنی کسک نہ ہوتی۔ اس کیفیت سے چھٹکارا پانے کا بس ایک ہی طریقہ تھا کہ میں اس سے معافی مانگ لوں۔ مجھے علم ہو چکا تھا کہ وہ لوگ اس علاقے میں نئے آئے تھے، اور ان کا گھر بھی ہم سے زیادہ دور نہ تھا، مگر کون سا گھر تھا یہ معلوم نہ تھا۔ روز ارادہ کرتی تھی اس سے بات کروں گی، مگر نہ کر پاتی۔ اسٹاپ پر کافی رش ہوتا تھا، سوال جواب تو درکنار، اس کی طرف دیکھنا مشکل ہو جاتا تھا۔ 2 ماہ گزر گئے، رفتہ رفتہ اس سے بات کرنے کی خواہش شدت اختیار کر گئی۔ میرے دل کا سکون اور راتوں کی نیند برباد ہو گئی، لیکن میں اس سے بات کرنے اور معافی مانگنے کی جرات نہ کر سکی۔ وہ روز ہی بس اسٹاپ پر نظر آ جاتا تھا، پھر اسے کیسے فراموش کر سکتی تھی۔ ایک روز جب شدید گرمی تھی اور بس اسٹاپ پر رش کم تھا، اکا دکا لوگ تھے، وہ بھی وہاں موسم کی شدت سے بے نیاز پسینے میں شرابور کھڑا تھا۔ اچانک آندھی چلی اور مٹی بھری ہوا سے میری آنکھیں بند ہو گئی۔ تبھی میرے ہاتھ سے کچھ کاغذات نکل کر سڑک پر اڑنے لگے۔ وہ بے اختیار ان کو پکڑنے کو دوڑا۔ اسے اس بات کی بھی پرواہ نہ تھی کہ سامنے سے بس آ رہی ہے۔ کاغذ پکڑ کر وہ ہانپتا ہوا واپس آیا اور میرے سامنے کر دیے۔ میں حیرت سے اسے تکنے لگی۔ اس کے خشک لبوں نے 2-1 بار جنبش کی، لیکن کوئی آواز نہ نکلی۔ میں منتظر ہی رہی کہ وہ کوئی سوال کرے تو میں جواب دوں۔ تبھی بس آ گئی۔ مجھے آج
बस का जल दाना खिल रहा था। हम बस में चढ़े, जगह ना थी, सिर्फ 2 नशिस्तों वाली एक सीट खाली थी। मैं नशिस्त पर बैठ गई, लेकिन वो खड़ा रहा। तब मैंने कहा, आप भी बैठ जाएं, यहाँ जगह खाली है। उसकी हैरत दीदनी थी, जैसे मैंने अनहोनी बात कह दी हो। ताहम वो मेरे बराबर वाली नशिस्त पर बैठ गया। बस मुसाफिरों से खचाखच भरी हुई थी। किसी की परवाह किए बगैर उसने मुझसे सवाल किया, आपका नाम क्या है? मुझे एहसास हुआ कि सब लोग हमारी तरफ मुतवज्जा हो चुके हैं। तब भी दिल की आवाज़ का गला घोंटकर मैंने मुनाफ़क़त इख्तियार कर ली और बुरा मानकर कहा, मेरा नाम जो भी है उससे आपको क्या? आप किस लिए पूछ रहे हैं? मैं आपकी इज़्ज़त करता हूँ, इसलिए आपका नाम जानना चाहता हूँ। अपने काम से काम रखिए। मैंने ज़रा बुलंद आवाज़ में कहा तो लोग हमारी तरफ देखने लगे। तब भी उसका रंग उड़ गया। एहसास शर्मिंदगी से उसके माथे पर नमी आ गई और कुछ ही देर में ये नमी उसकी आंखों से आंसू बनकर टपक पड़ी। इसी वक्त बस रुकी और वो उतर गया। मेरा जी चाहा मैं उसके साथ ही उतर जाऊं, उसका बाजू थाम कर माफ़ी मांग लूं, लेकिन लोगों के खौफ से ऐसा न कर सकी। रास्ता कटना मुश्किल हो गया, दिल पर मन्नो बोझ पड़ गया, सांस भी लेना दुश्वार हुआ। इन दोनों में कोई एक लम्हा भी ऐसा ना था जब उसका ख्याल मेरे साथ ना था। सोच सोच कर मैं हलकान हो गई थी। मैं उसका नाम न जानती थी, लिहाजा उसके मुतल्लिक किसी से पूछ भी ना सकती थी। किसी से पूछती भी तो क्या, एक अजनबी के लिए मेरा बुरा हाल हो गया। वो अजनबी और उसका कुर्ब मुझे पहले बुरा लगा और अब उसकी गैर हाज़िरी भी मुझे बहुत बुरी तरह खिल रही थी। एक रोज़ मैं दफ्तर जाने के लिए बस में सवार हुई। सीट पर बैठी हुई थी कि वो मुझे नज़र आ गया, अपने दोस्तों के साथ। दिल उसे देखकर जी उठा। ज़ोर से उसे पुकार कर अपनी तरफ बुलाना चाहा तो लोगों का समंदर बीच में आ गया। दोस्त बातें कर रहे थे और वो चुप था। उसके होंठों पर मोहर लगी हुई थी। बेदिली से इधर उधर देख रहा था, जैसे उसे इनकी बातों से कोई दिलचस्पी ना हो। तभी यूं ही उसकी नज़र मुझ पर पड़ी, वो उल्टे कदमों बस से उतर गया। इतने दिन से जिनका इंतज़ार था वो मुझे देखते ही पलट गया था। अचानक ही मेरे जहन ने सोचा, क्यों ना इन लड़कों से ही उसके बारे में पूछूं। तभी मैंने उनमें से एक से कहा कि वो मेरा कज़न था, लेकिन वो क्यों उतर गया है। एक ने बेख्तियार कहा, कौन? वो जो भी उतरा है, आफाक। दूसरा बोला, हाँ वही। मैंने सुकून का सांस लिया, मुझे उसका नाम मालूम हो चुका था। मैंने कहा, आप इस तक मेरा मैसेज पहुंचा देंगे? मुझे उससे ज़रूरी बात कहनी है। बल्कि ऐसा करें, मुझे उसके घर तक ले चलिए, मैं उनका घर भूल गई हूँ। क्यों नहीं बाजी, उनमें से एक लड़के ने कहा। जब मैं अपनी मंजिल पर उतरी तो उनमें से एक लड़का जिसका नाम रशीद था मेरे साथ ही उतर गया और मेरे आगे आगे चलने लगा। जब हम उसके घर पहुँचे तो उसकी बहन ने हमारा इस्तकबाल किया। सर्दियों का मौसम था। वो धूप में चारपाई पर लेटा था और उसने अपना बाजू मुंह पर रखा हुआ था। मैंने पास जाकर उसे पुकारा, आफाक। उसने आंखें खोलकर मुझे देखा और फटी फटी आंखों से मुझे तकने लगा। मैं तुमको मनाने आई हूँ, तुमसे माफ़ी मांगने आई हूँ और ये बताने आई हूँ कि तुमको मेरी अम्मी जान ने बुलवाया है। उसकी हैरत ज़दा आंखों में बहुत वीरानी भरी थी। मैं खुद को उसकी ज़िम्मेदार समझने लगी। मैंने कहा, आफाक, पहले दिन मुझे गलत फहमी हुई थी। मैं समझती थी कि तुम शायद गलत किस्म के लड़के हो। दूसरी बार लोगों से डर कर मैंने ऐसा कह दिया। लोग हमें घूर रहे थे, इसलिए मुझे माफ़ कर दो। दरअसल मैं खुद तुमसे बात करना चाहती थी, माफ़ी मांगना चाहती थी, लेकिन जब लोग मुतवज्जो हो गए तो मैं शर्मसार हो गई। कोई बात नहीं, लोगों ने तुम्हारी खातिर मेरी बेइज्जती की, मगर मैंने उसे अपनी इज़्ज़त अफजाई समझा, क्योंकि मैं तुमसे नफ़रत नहीं करता। मैं तुम्हारी निगरानी ज़रूर करता रहा हूँ। जानती हो क्यों? तुम्हारे मोहल्ले के 2-3 नौजवान जो आवारा मिजाज हैं और जानते हैं कि तुम एक बेवा माँ की बेटी हो,
मजबूरन घर से निकलती हो। वो तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहते हैं क्योंकि तुम्हारा कोई भाई भी नहीं है कि जिसका उनको खौफ होता। एक रोज़ वो मोहल्ले के चौक में खड़े तुम्हें सताने और तुम्हारा पीछा करने का प्लान बना रहे थे। मैंने उनकी बातें सुनी तो उनको टोका। वो खामोश हो गए क्योंकि वो जानते हैं कि मेरे वालिद साहब पुलिस में हैं, ताहम वो बाज नहीं आ सकते थे। उनमें से एक हर रोज़ बारी बारी तुम्हारा पीछा करता था। मैं भी इसी बस में जानबूझकर सवार हो जाता था जिसमें तुमको जाना होता था। ये बस बिल्कुल मेरे दफ्तर के सामने रुकती हैं, लिहाजा मैं बाइक पर जाने की बजाय बस पर जाने लगा, सिर्फ तुम्हारी खातिर। तुमने इन्हीं लोगों के सामने मेरी अहानत कराई, मगर तुम भी सच्ची थी। आफाक की बातें सुनकर मैं हैरान रह गई। क्या वाकई उसने मुझे गुंडों से बचाने के लिए दुख बर्दाश्त किया है? मेरे दिल में उसकी कदर व मंजिलत और बढ़ गई। इंसान की नीयत का अक्स उसके चेहरे पर होता है। मेरा जी चाहा कि उसके कदमों में बैठ जाऊं। मेरी आंखों से आंसू छलक गए। उसकी बहन हमारे लिए चाय ले आई थी। उसने अपनी बहन से मेरा तारफ़ इस तरह कराया, उसका नाम फरीदा है, ये मेरे ऑफिस में काम करती हैं। उसकी अम्मी जान से मिलवाओ, फिर तुम भी तैयार हो जाओ। हम दोनों उनको घर छोड़ने जाएंगे। मैं यहाँ 2 घड़ी को आई थी, मगर मुझे यहाँ इतनी इज्जत मिली कि जी चाहा हमेशा के लिए यहाँ ही रह जाऊँ। आफाक और नजमा मुझे घर छोड़ने आए, अम्मी से मिले। अम्मी को आफाक बहुत अच्छा लगा। उन्होंने नजमा से कहा, मैं तुम्हारी अम्मी से मिलना चाहती हूँ, मैं उनको भी आपके पास ले आऊँगी। नजमा ने जवाब दिया। इसके बाद मेरे सर से बोझ उतर गया। आफाक मुझसे नाराज़ नहीं था, उसने मुझे माफ़ कर दिया था। वो मुझसे नफ़रत नहीं करता था, दिल ही दिल में मुझे चाहता था। इस वाक़े के बाद आफाक की वालदा ने मुझे बहू बनाने का फ़ैसला कर लिया। एक रोज़ वो रिश्ता तलब करने आईं। वो खुशहाल लोग थे, जबकि मैं एक गारमेंट फैक्ट्री में काम करती थी। फिर भी उन्होंने इस फ़र्क को नहीं देखा। मैं बहुत खुश हुई और मेरे मन की मुराद पूरी हो गई। शुक्र है कि मेरी किस्मत में एक अच्छे इंसान का इंतखाब लिखा था और एक नेक नौजवान ने मुझे पसंद किया था। मेरी वालदा ने भी अच्छी तरह तसल्ली करने के बाद इस रिश्ते को कबूल किया। मेरी अम्मी जान सख्त मिजाज ज़रूर थीं, मगर नादान नहीं। वो मोहल्ले के लोगों को खूब अच्छी तरह से जानती थी, उनमें फरासत थी, तभी उन्होंने आफाक को देखते ही पसंद कर लिया था। यूँ आफाक की शादी मुझसे हो गई। मैं खुशकिस्मत हूँ कि एक नेक इंसान और शरीफ घराने की बहू बनकर ख़ानदानी लोगों में आ गई। उन्होंने मुझे इज़्ज़त दी, वरना गलत इंतखाब से मेरी ज़िंदगी तबाह भी हो सकती थी। तो दोस्तों, अल्लाह ताला मेरे तमाम बहन भाइयों को अपने हिफ्ज़-ओ ईमान में रखे, आमीन। तो दोस्तों, ऐसी ही शानदार वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं ऐसी एक अच्छी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।